Hello everyone, welcome back. And today we are going to discuss a very important topic, that is evaluation metrics and how we measure the performance of any model. Okay, so in this we are going to discuss a very key few things, which are like when we use different matrices for different model. So let me make one thing very clear, like when we are evaluating different models, we are always using different kind of matrices. Okay, like if you are, let's say you are buying bananas and oranges. So are you going to ask them to give you a kg of banana, or you are going to ask a kg of oranges? So basically, oranges make sense here because in India, or like usually we purchase banana in a pack of dozens. So evaluating like both things on the same parameters, like if we are asking a dozen of oranges, then maybe there is a possibility that this might not be beneficial for either you as a buyer or somebody else as a seller. So we have different methodologies to weigh different things. Same thing is applied here. So basically, we are just measuring different type of models performance based on different matrices, and we are going to discuss this in greater details on the like next slide. Okay, तो यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, हर मॉडल को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है. जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे ले लो कि आपके पास एक दो वस्तुएं हैं, केला और संतरा. तो आप जनरली केला दर्जन में खरीदते हो और संतरे हमेशा किलो में खरीदते हो. क्या ये सेंस बनाता है कि आप एक दर्जन संतरा किसी से मांगो या एक किलो केला? बिल्कुल बनाता है. क्यों? क्योंकि जब आप कच्चे केले लेते हो तो वो आप किलो के हिसाब से लेते हो, लेकिन जब पके केले लेते हो तो वो आप दर्जन के हिसाब से लेते हो. लेकिन संतरे की अगर हम बात करें तो संतरे को हम हमेशा किलो के भाव में लेते हैं, कभी दर्जन के भाव में नहीं लेते. क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाई हुई है हमने. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने मांगे 2 दर्जन, हमको संतरे दे दो. अब संतरों का साइज छोटा है, ठीक है, छोटे साइज के हैं. अब हो सकता है वो 2 किलो का वेट ना बना पाए या फिर 2 किलो से ज़्यादा का वेट बना पाए. तो कई बार ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, कई बार ये सेलर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. तो हमने अलग अलग पैरामीटर से जज करने का उनका तरीका बना के रखा हुआ है. कुछ इसी प्रकार से हम अपने विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को विभिन्न प्रकार की विधियों से जज करते हैं, और इन सब के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो व्हाई इवैल्यूएशन matters. So basically, accuracy alone can be misleading. Different problems require different matrices. It helps catch models' weaknesses and ensures reliable real-world performance. So why we are discussing these things? So the thing is, like, accuracy can be misleading sometimes. Can be misleading sometime. How? So let's say you are playing a game of dart, okay, and let's draw something. There are different positions in which your dart is playing. Like you are going to throw your dart on different places. This is the bullseye, and these are different rings. So if we throw our like dart every time on the board and we are not getting any point,
Does that make any sense? We are playing to win or lose. So it doesn't make any sense if we are scoring zero every time. So that is accuracy. Basically, that's accuracy because you are hitting that thing every time. So your model is accurate, but precision is something when you are hitting, like you are targeting bullseye and you are hitting that every time. So that is precision. So these both matrices, when combined together, produces a great model. But a single accuracy can be misleading. So it always hides issues with that particular model. Different tasks require different type of matrices. Okay, as I have explained earlier, like in the case of banana or apples. Okay, and there is a practical example as well. So let's discuss about something. If we are having a model which detects diseases, okay, then accuracy is useless if the person is 99% healthy. That doesn't make any sense. So if you are detecting, if somebody is healthy, and if somebody is healthy and there are symptoms, like if he is not having any kind of issues, so you are having some symptoms which might be common for flu or malaria or any kind of diseases. Okay, but the person is healthy, but there are some other symptoms, like for the common flu we are having this kind of scenario, like we are shivering in night. So there is a possibility that he might be living in a place which is colder. So if you are accurate and you are detecting it as malaria or typhoid, that doesn't make any sense. So in this scenario, accuracy is useless. You are hitting the exactly right points, like he is having shiverings or any other kind of symptoms. But is the person unhealthy? No. Is the person diseased? No. So in this scenario, the accuracy is utterly, like, I don't want to use that word, but it is completely useless. ओके, तो यहाँ पे अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए एक्यूरेसी हमेशा सही नहीं होती। वो कई बारी हमको भ्रमित कर सकती है। कैसे? जैसे अभी मैं बात करता हूँ, हम अपने डार्ट के गेम की बात करते हैं, ठीक है? हमने बनाया अपना ये बोर्ड बनाया, डार्ट बोर्ड बनाया। ये हमारा बुल्स आई है, ठीक है? ये हमारा क्या है? बुल्स आई। अब क्या है, आपने डार्ट फेंका, आपको इन रिंग्स पे पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है? बुल्स आई पे पॉइंट मिल रहा है और आपका बोर्ड है इतना बड़ा, तो बोर्ड पे आप हिट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका मॉडल एक्यूरेट है, ठीक है? लेकिन आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या? नहीं। और अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उस मॉडल का होना नहीं होना किसी काम का है नहीं। यहाँ पे जब हमारा मॉडल या तो किसी रिंग को टच करता है, ठीक है, हमारा डार्ट जब किसी रिंग पे टच हो रहा है या फिर हमारा डार्ट बुल्सआई पे जा रहा है, तो हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हमारा कुछ मतलब निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर, मतलब पूरी पूरी फील्ड को टच कर लेना, और प्रिसीजन मतलब हमको जो एग्जैक्टली चाहिए उस चीज़ पे आना, ठीक है? डिफरेंट मॉडल रिक्वायर्स डिफरेंट मैट्रिसेस। तो हम, जैसा मैम पहले बात कर रहे थे हम, कि संतरे और केले दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हम अलग अलग तरीके से खरीदते हैं। दोनों का मेजरमेंट हम अलग तरीके से करते हैं, एक को किलो में करते हैं, एक को दर्जन में करते हैं, ठीक है? कुछ इसी प्रकार से है। और इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हमारे मॉडल की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जिससे हमें पता चल सके और हम उसको हटा सकें। और अगर हमारा मॉडल, लाइक इवेल्युएशन मैट्रिक्स, अच्छे और स्ट्रांग रहे, तो हमारा जो रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस होगी हमारे मॉडल की, वो रिलायबल होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है? द फोर की मैट्रिसेस, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास चार विशेष मैट्रिसेस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है हमारा, वी इवेलुएट क्लासिफिकेशन यूजिंग एक्यूरेसी, प्रिसीजन,
recall, and F1 score. And each measures a different behavior of the model. So basically, we are having these four matrices which are important when we want to have something concrete. So let's discuss it in greater detail. Accuracy. When we require accuracy, so basically this can be phrased how many times I'm right. Like I'm hitting that board. Works only when the classes are balanced. It basically let me give you some insights. How many times I hit the board. Yeah, फिर how many times I have like predicted it right. Yeah, how many times I am right. And it only works when something like when everything is basically well balanced. If we are not having something well balanced, then it is going to fail. Precision. Precision is basically how right you are. How right you are. अच्छा आप ये अब मैं प्रिसीजन को कुछ इस प्रकार से आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आपका बोर्ड है, ठीक है। आपके बोर्ड में आपको 1 से लेके 100 तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है। आपने अपनी आंख बंद की, ठीक है। आंख बंद की। अब आपने आंख बंद की, आपने बोर्ड पे कहीं भी टच कर दिया, ठीक है। आपका अगर हाथ किसी नंबर के ऊपर पड़ा, ठीक है, सपोज वो पड़ा 60 पे, ठीक है, और आपको वैल्यू चाहिए थी 80 की। आपने मल्टीपल इटरेशन की, आपका 70 तक पहुंचा, 85 पहुंचा, 86 पहुंचा, इवन 82 पहुंचा, लेकिन 80 नहीं पहुंचा। तो एक्यूरेसी वो यहाँ पे उसकी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आपको मिल ही नहीं पा रही है। आप डेफिनेटली नंबर्स पे लैंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। रिकॉल। रिकॉल बेसिकली रिकॉल का मतलब हो गया हाउ मैनी रियल पॉजिटिव आई कैच। मतलब आप ये देखिए, इसको आप एक स्पैम ईमेल की तरह समझिए कि हमारे पास है स्पैम ईमेल जो डेफिनेटली स्पैम है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये है ट्रू पॉजिटिव। टीपी, एफपी, टीएन एंड एफएन, ये 4 टर्म हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा कि ये चारों चीजें हम आगे चल के यूज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टीपी क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। एफपी क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव। टीएन क्या होता है? ट्रू नेगेटिव। एफएन क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या? अगर कोई स्पैम है और उसको स्पैम डिटेक्ट कर लिया तो वो ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जनरल नॉर्मल ईमेल है, ठीक है, अगर उसको इसने डिटेक्ट किया तो वो फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर कोई जनरल ईमेल है, ठीक है, और इसने बोला कि हाँ ये स्पैम नहीं है, तो ये ट्रू नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई स्पैम ईमेल है और इसने बोला कि ये गलत, ये स्पैम नहीं है, तो ये फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैट्रिसेस हो गए। अब इन सब के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, द फाउंडेशन। बेसिकली हमारा फाउंडेशन है ये। A confusion matrix breaks prediction into actual positive, actual negative, predicted positive, and predicted negative. Okay, it helps us understand whether the model is right or wrong. So basically, what it does, it produces like as we have discussed, this is true positive, false positive, true negative. Okay, so it help us understand where the model is right or wrong. तो अगर मैंने जो आपको बात की कि यहाँ पे हमारे पास 4 मेल हैं, ठीक है, 4 ईमेल आए हुए हैं, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया स्पैम है, ठीक है।
तो ये अगर सच में स्पैम है तो ये ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नॉर्मल है और हमने इसको क्या किया, टैग कर दिया स्पैम, तो ये क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। अब ये फॉल्स नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि अगर ये स्पैम है और हमने इसको इनबॉक्स में लैंड करा दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमने वो गलत चीज़ गलत जगह भेज दी। और अगर हमारा स्पैम है और इसको हमने स्पैम में ही डाला, तो वो क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने अगर स्पैम को स्पैम में डाला और बाकी चीज़ों को अलग अलग रखा, तो आप ये समझ, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि स्पैम को स्पैम डिटेक्ट करना और स्पैम को स्पैम डिटेक्ट नहीं करना, ये हम अलग अलग 4 मेथड से यहाँ पे, अलग अलग 4 तरीके से हम ये चीज़ों को डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? So basically accuracy is defined with the formula that is true positive plus true negative divided by all samples. Okay. It is good when classes are balanced. Mistakes have similar impact. So basic and fails when data set is imbalanced. So basically what it does, when classes are balanced and the mistakes don't have that much significant effect on that particular prediction, then it works well. Like हमारी चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये जो कहावत इसी के ऊपर लागू होती है और कहीं नहीं होती है। ठीक है। तो अगर सब कुछ हमारे हिसाब से है और हमने कुछ गलती भी कर दी, किसी को पता नहीं चला, हमारी किसी ने हाइड कर दी हमारी गलतियाँ, ठीक है, ये छुप गई हमारी बहुत सारी गलतियों, बहुत सारे सही प्रिडिक्शन में एक गलती छुप गई, तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन जब डेटा सेट इम्बैलेंस है, डेटा सेट कम्प्लीटली इम्बैलेंस है, कुछ इस प्रकार से है कि चीज़ें एकदम, लाइक क्या बोलते हैं, हैपसर्ड है, ठीक है, एकदम से इम्बैलेंस्ड है, तो ये फेल होना चालू हो जाता है। कैसे? अच्छा, आप ये सोचिए कि आपने मान लीजिए 100 एग्जाम्पल दिए, ठीक है, let's say we are having only 100 examples of any particular thing, 100 examples, and in those 100 examples 100 things are correct, sorry, in those 100 examples 98 things are correct and 2 are incorrect. तो आप ये बताइए कि यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? अगर हम ऐसे जज करेंगे तो ये 98% एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि 98 बार तो इसने सही दिया, 2 बार इसने गलत जवाब दिया। 2 बार गलत जवाब क्यों दिया? क्योंकि इसको पता ही नहीं था, तो उसने सारे के सारे पॉजिटिव में ही डाल दिए, ठीक है, या फिर सारे के सारे नेगेटिव में ही डाल दिए। तो जो 2 नेगेटिव हैं या 2 जो उलट हैं, वो बस पकड़े जाएंगे। बाकी जो 98 हैं जो उसी के प्रकार के हैं, वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, फेल हो जाता है। ठीक है। और ये अगर यहीं पे डेटा सेट पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो ये बढ़िया काम करता है। जैसे आपने 50% सिखा दिया कि भैया 50% ये है, 50% ऐसा है, मतलब 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है, उसके बाद प्रिडिक्शन करो, तो ये कुछ पैटर्न सीख जाता है। लेकिन और फिर इसकी एक्यूरेसी, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती है। अब आप एक चीज़ ये याद रखिए कि हायर एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं होता कि वो सही ही हो। ठीक है। एंड वाई एक्यूरेसी कैन बी मिसलीडिंग। सो मैं सिर्फ वही चीज़ आपको अभी बता ही रहा था कि एक्यूरेसी हमेशा सही क्यों नहीं होती, ये कंफ्यूजिंग क्यों होती है, ये मिसलीडिंग क्यों होती है। सो फॉर दैट वी हैव एग्जांपल दैट our data set is having 95% of not spam and 5% of spam। ठीक है। तो आप ये बताओ कि हमने जब चेक किया तो हमारे 95 ईमेल तो सही थे, 5 ईमेल गलत थे, ठीक है, 100 के डेटा में, तो हमारी एक्यूरेसी तो 5% आई, नहीं सॉरी, हमारी एक्यूरेसी 95% आई। लेकिन इसका यूजफुलनेस क्या है, रियल वर्ल्ड में कितना काम करेगा हमको नहीं पता। ठीक है।
हो सकता है ये 95 के 95 एग्जाम्पल्स गलत कर दे, या फिर 5 के मतलब 20 25 30, अगर हम 100 को दे रहे हैं 50% एग्जाम्पल गलत कर दे, तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रह गया। ठीक है, तो यही बात है कि एक्यूरेसी हमेशा ज़रूरी नहीं हो कि सही हो। ठीक है, एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार ऐसा मिलेगा आपको, एक्यूरेसी कंप्लीटली मिसलीडिंग है यहाँ पे। अब इस केस की जो बात की है, जैसे 95 और 5, 100 में हमने 95 सही रखे थे, 5 गलत रखे थे। ठीक है, तो उसने 95 जब प्रिडिक्शन किया तो 95 तो सही निकले, लेकिन जो 5 गलत निकले, हो सकता है उसने सही किया हो उनको। ठीक है, तो हमारे गलत तो 5 ही थे, और उसने सही प्रिडिक्शन इसके हिसाब से कितने किए, 95 किए, और गलत कितने किए, 5 किए। तो हमारे गलत वाले तो एक भी नहीं पकड़ पाया ना। ठीक है, हमारे जो उल्टे केसेस आए थे उनको तो उसने छोड़ ही दिया पूरी तरह से। तो एक्यूरेसी यहाँ पे हमारे लिए पूरी तरह से मिसलीडिंग है। प्रिसीजन, अब प्रिसीजन हम कैसे अपना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, हमारा प्रिसीजन कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो आप अब ये समझिए कि हमने अगर यहाँ पे अपने मॉडल को दिया है कुछ इस प्रकार से कि 95, ठीक है, 95 हमारे पास ट्रू पॉजिटिव थे। ठीक है, और हमारे पास 95 क्या थे, ट्रू पॉजिटिव, प्लस हमारे पास 10 फॉल्स पॉजिटिव थे। या फिर कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा देख लें कि हमारे पास 5 फॉल्स पॉजिटिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेसिजन 5%, मतलब हमारा जो प्रेसिजन हुआ वो क्या आया, 95 डिवाइड बाई 100। ये 100% प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, ये 95% प्रिसाइज है। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि हमको मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, इट मेजर्स करेक्टनेस ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शन। ठीक है, हाई प्रिसिजन मीन्स व्हेन आई प्रिडिक्ट पॉजिटिव आई एम यूजुअली राइट। इट इज़ यूजफुल इन फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल टेस्ट एंड स्पैम डिटेक्शन। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या करता है ये, पॉजिटिव जो हमारे रेस्पॉन्सेस है या पॉजिटिव प्रिडिक्शंस है उनके करेक्टनेस को मेजर करता है। ठीक है, हाई प्रिसिजन में का मतलब होता है, मैंने जब क्या किया, अगर पॉजिटिव किसी चीज़ को प्रिडिक्ट किया है तो फिर मैं सही हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैंने 5, जैसे मान चलिए मैंने 95 को यहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, और 95 के 95 सही हैं, मतलब मेरे प्रिडिक्शंस गलत नहीं हैं। ठीक है, एक्यूरेसी में वो चीज़ें कंफ्यूजिंग ऐसी हैं कि हो सकता है जब हमने 95 प्रिडिक्शंस किए और 95 में से 90 ही प्रिडिक्ट हो। ठीक है, सही प्रिडिक्शन तो हमारा 100% आया, 95 के 95 में प्रिडिक्ट कर दिया उसमें, लेकिन उस हमारे 95 में से 90 ही सही रहे और बाकी के जो 5 रहे वो गलत रहे, लेकिन हमने उनको भी सही प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो क्या मैं वहां पे सही था, नहीं। लेकिन एक्यूरेसी में इसका उलट है, अगर मैंने 95 प्रिडिक्ट किए हैं तो फिर मेरे को 95 के 95 सही हैं, ये पता है। ठीक है, ये अधिकतर हम यूज़ कहाँ करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब बैंकिंग में आप इसका प्रयोग होते देखेंगे। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, अब यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है, एक्यूरेसी के साथ मैंने समस्या जुड़ी हुई बता दी कि अगर कोई 99%, मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम नंबर में देख लेते हैं, 99% वो हेल्दी है। ठीक है, 1% उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हमको मलेरिया या टाइफाइड से मिले हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे वो हेल्दी है, ठीक है, और हमने उसको प्रिडिक्ट भी हेल्दी ही किया, क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ 1% ही, 1% चांस है, 100 में से 1% चांस है कि वो बीमार हो। ठीक है, लेकिन हमारे जो 99% चांसेस वो ये कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं है। तो हम यहाँ पे मेजोरिटी के साथ जाते हुए हमने क्या प्रेडिक्ट किया, हमने बोला कि नहीं, इसके चांसेस यही हैं कि ये हेल्दी है, ये कुछ और बीमारी हो सकती है। ठीक है, और इसका हम प्रयोग करते हैं स्पैम डिटेक्शन में। ठीक, स्पैम डिटेक्शन तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, तो स्पैम डिटेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे
वही अगर मैंने 95 को सही बोला है ना, तो 95 सही ही है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रिसीजन है। अगर हमने 95 को सही बोला तो 95 सही है, 5 को गलत बोले तो 5 गलत ही है। अब आते हैं हम रिकॉल पे। अच्छा, रिकॉल, रिकॉल एक बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। रिकॉल बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अब ये बताइए कि मैंने रिकॉल को अच्छा क्यों बोला। रिकॉल को अच्छा बोलने के पीछे का मेरा कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि देखिए, मैंने मैंने कितने सही पॉजिटिव डिटेक्ट किए, ठीक है। मैंने कितने सही पॉजिटिव डिटेक्ट किए, यही है हमारा रिकॉल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाई रिकॉल मीन्स फ्यूअर मिस्टेक्स, ठीक है। अगर हमारा रिकॉल हाई है मतलब हम अपने डिसीजन को वापस से चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सही है या नहीं है, तो हमारे मिस होने के चांसेस क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। सो हियर रिकॉल इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला that is TP divided by TP plus FN. Okay, so here true positive divided by true positive plus false negative, ठीक है। It measures completeness of positive predictions. तो अब ये, अब आप इस मैट्रिक्स को आप इस प्रकार समझिए कि हमारे जो पॉजिटिव प्रिडिक्शन है वो कितने कंप्लीट है, ये कुछ इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। हाई रिकॉल्स मीन्स आई कैच मोर रियल पॉजिटिव, जितना ही ज़्यादा रिकॉल उतना ही ज़्यादा हमने सही केसेस को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ को आप 2 बार चेक कर रहे हो। रिकॉल करने का मतलब क्या समझते हो, रिकॉल करने का मतलब वापस बुला लेना, वापस बुलाया फिर आपने चेक किया सही है, हाँ ओके गुड, गलत है भाग यहाँ से। तो ये यूज़फुल कहाँ होता है, सो बेसिकली इट इज़ यूज़फुल इन डिजीज स्क्रीनिंग, सेफ्टी सिस्टम्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन। अब कैसे, देखिए डिसीज स्क्रीनिंग, आपने कोई एक किसी को बीमार घोषित किया, ठीक है, बीमार घोषित किया, आपने बीमार घोषित किया, उसके सिम्टम्स आपको 80% मिल रहे हैं, तो ठीक है। फिर आपने जब उसको पहले फेज में निकाला, उसके बाद फिर आपने दोबारा चेक किया, तो अगर वो सही निकला देन इट्स गुड, अगर आपने गलत डिटेक्ट किया तो वहां पे वो फेल हो रहा है, ठीक है। सेफ्टी सिस्टम और हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन, मतलब देखिए इंट्रूजन डिटेक्शन कुछ इस प्रकार से कि हमने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया, लॉगिन तो हो गया, हम सिस्टम में घुसने वाले थे, लेकिन उसने क्या किया, दोबारा से चेक किया कि क्या ये सही मेथड से आया है, ठीक है। सही मेथड क्या, सही मेथड देखिए, सही मेथड कई बार हो सकता है क्रेडेंशियल्स आपके, आपने क्रेडेंशियल्स डाले, आपके पास क्या आया, ओटीपी आया, आपने वो चीज़ वहाँ पे यूज़ की, ठीक है। इसमें से अगर हमने कोई भी एक चीज़ बाईपास की तो ये क्या है, ये उसके लिए ये हैकिंग अटेम्प्ट है और उसको वो वहीं रोक देगा, बोलेगा नहीं यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, आप सही नहीं कर रहे हैं, आप निकलिए यहाँ से। और कुछ इसी प्रकार से सेफ्टी सिस्टम्स, सेफ्टी सिस्टम में हम अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी की बात करते हैं, या फिर मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ एक भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। और यहाँ पे फेल क्या हुआ था, हमारे जो सेफ्टी मेजर्स थे हमने उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान दिया होता, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई वैल्यूज, लेट्स से यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, हमारा बैरोमीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर में प्रेशर की वैल्यू एक्स होनी चाहिए, ठीक है, वो एक्स है, एक्स से वाई जानी चाहिए, ठीक है।
एक्स से वाई जाने के लिए, एक्स से वाई जाना कोई बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्स से वाई के जाने के बीच में कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है, और ये सडन चेंजेस तो नहीं है, इरेटिक बिहेवियर तो नहीं है। ये सब सारा अगर हम रिकॉल पे चेक करेंगे और हमको इनमें से कोई भी एक चीज़ लगी प्रॉब्लमेटिक कि नहीं, ये कुछ जो यूजुअल पैटर्न है हमारे उनको फॉलो नहीं करता, तो हमारा सेफ्टी सिस्टम वहाँ पे एक्टिव होगा और हमारा प्लांट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, और भोपाल गैस त्रैजेडी में यही हुआ था कि हमारे जो सेफ्टी सिस्टम थे वो सारे के सारे फेल थे। हमने सेफ्टी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, यूनियन कार्बाइड ने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया था, और वहाँ पे हमारी इतनी बड़ी मानव जनित दुर्घटना हुई थी। और प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल ट्रेड ऑफ, तो ये क्या है? बेसिकली इंक्रीजिंग प्रिसीजन मींस रिकॉल में ड्रॉप। तो देखिए, अगर आपकी वैल्यू एकदम से सही आ रही है तो आपको रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इंक्रीजिंग रिकॉल दैट मींस प्रिसीजन में ड्रॉप, और आपको बार बार रिकॉल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका प्रिसीजन सही नहीं है, ठीक है। वी एडजस्ट थ्रेशोल्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आपका प्रिसीजन हाई है, ठीक है, तो आप रिकॉल क्यों करोगे? आपका अगर मॉडल एकदम सही, एकदम से सही प्रिडिक्शन कर रहा है तो रिकॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मॉडल यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, देखिए यहाँ पे प्रिसीजन रिकॉल कर्व कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए, अगर आपका प्रिसीजन 100% है, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल आप देखिए इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आपका जो रिकॉल 100 पे जा रहा है, तो यहाँ पर प्रिसीजन देखिए अब अपना घटता जा रहा है। तो देखिए, ये आपस का ट्रेड ऑफ है कि जितना ज़्यादा प्रिसीजन उतना कम रिकॉल, और जितना ही ज़्यादा रिकॉल उतना ही ज़्यादा कम प्रिसीजन। तो इसमें हम एक मिड पॉइंट ढूंढते हैं, एक वेल बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढते हैं, जो कि हमारा थ्रेशोल्ड है उसका, कि यहाँ पे हमारा ना तो प्रिसीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको प्रिसीजन नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हम रीचेक करने के लिए अपने पास एक वो रखते हैं, एक एक मध्य का रास्ता निकालते हैं, एक मध्यस्थता करते हैं कुछ इस प्रकार से, मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता एक कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ना तो हमारा रिकॉल बढ़े, ना ही हमारा प्रिसीजन घटे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आप ये यहाँ पे 0 0 देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे चलिए हमने मान के चलिए 0.5 है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0.5 कर दिया, ठीक है। तो हमारा 50% प्रिसीजन है, 50% रिकॉल है, तो यहाँ पे हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल का ट्रेड ऑफ। भैया, आपका प्रिसीजन अगर बढ़ रहा है तो आपका रिकॉल घट रहा है, और रिकॉल बढ़ रहा है मतलब आपका प्रिसीजन घट रहा है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम के हिसाब से इन जो हमारा थ्रेशोल्ड है उसको एडजस्ट करते हैं, हमको किस प्रकार के प्रिडिक्शंस चाहिए, हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम इसका थ्रेशोल्ड सेट करते हैं और अपनी प्रिडिक्शंस को प्राप्त करते हैं। F1 स्कोर। अच्छा, F1 नाम सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। F1 से हमको फार्मूला 1 ही याद आता है, पर यहाँ पे F1 वो नहीं है। F1 क्या है यहाँ पे? हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है। It balances both matrices and it is useful when classes are completely imbalanced, ठीक है। तो F1 क्या है? F1 स्कोर है हमारा हार्मोनिक मीन प्रिसीजन और रिकॉल का, ठीक है। अगर हम प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो हमको हमारा क्या मिलता है? F1 स्कोर। ये क्या करता है? दोनों मैट्रिसेस जैसे हमारे प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को बैलेंस करता है, मतलब तराजू के दो पड़ रहे, 1 किलो संतरा तो 1 किलो का बाट, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये कब यूज़फुल होता है? जब हमारे क्लासेस पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो। मतलब आप कुछ मान के चलिए कि आपने ट्रेनिंग डेटा सेट कुछ ऐसा दिया कि आपने ट्रेनिंग डेटा सेट दिया 100 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, ठीक है, 100 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो आपके पास टोटल आया 105, ठीक है। अब आप ये सोचो
कि 105 में जैसे 5/105 कर दें तो ये वैल्यू कितनी कम पड़ती है उसके सामने, और यही 100/105 करें तो ये वैल्यू इसके सामने काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हमने जो गलत का है वो डेटा बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो F1 स्कोर है वो काम आता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं ROC कर्व वर्सेस AUC। देखिए, these are optional thing but these are most like one of the most powerful things in the particular model evaluation. ROC curve, what is ROC? ROC curve is basically plots true positive rate versus false positive rate. So basically ROC is receiver operating characteristics, that is receiver operating characteristics curve, that is ROC curve. So ये क्या करता है? ROC कर्व करता है क्या है, हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में एक कर्व प्लॉट करता है। ठीक है, हमारा AUC मीन्स, हमारा AUC क्या करता है, हमारा AUC मेजर्स द क्वालिटी ऑफ रैंकिंग। तो AUC इज एरिया अंडर कर्व, सीधी सी बात है। ये जो एरिया है, ठीक है, हमारा जो, अगर हम ये पूरा कर्व मान के चल रहे हैं तो हमारे पूरे कर्व के अंदर जो एरिया है, ये जो बेसिकली मैंने लाल से हाईलाइट कर दिया, आपका हैश कर दिया, हैश्ड कर दिया, वो है हमारा क्या, वो है हमारा AUC, दैट इज एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि हायर AUC मीन्स बेटर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा एरिया अंडर कर्व जितना ही बड़ा होगा, ठीक है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव बताना, नेगेटिव को नेगेटिव बताना, वो उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है। So basically we are discussing the real world case study, that is spam classifier. So the matrices help us answer accuracy, that is overall correctness, precision, that is are flagged spam messages are actually spam or not, then recall, am I catching the most spam, and F1 is balanced performance. So here, let's say if we are having costly missing positive, ठीक है, यहाँ पे कोई एक कंपनी का आपको ईमेल आया, ठीक है, कंपनी का आपको कोई ईमेल आया और आपने उसको, ठीक है, कंपनी का कोई ईमेल आया, ठीक, या फिर कंपनी का ईमेल छोड़ता है, कोई एक पैंडेमिक है, ठीक है, कोई एक ऐसा बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि हमको कैच कर लेना चाहिए था, वो हमारे ईमेल में लैंड करना चाहिए था, ठीक, वो अगर हमने मिस कर दिया तो एक महामारी की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव को मिस करना बहुत कॉस्टली हो गया। तो यहाँ पे हम किसको रख रहे हैं, रिकॉल मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्टली फॉल्स अलार्म, प्रिसीजन। फॉल्स अलार्म कैसा, देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको ऐसे थ्रेट दिया, ठीक है, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ दे दी, ठीक, अब आपका सिस्टम कुछ तरीके डिज़ाइंड है कि आपको अगर ये चीज़ें आपके मेल पे आई, ठीक है, आप मान लीजिए कि बहुत बड़े VIP पर्सन है, ठीक है, आपके चीज़ पे, आपके मेल पे ये चीज़ें आई तो उसने फिर यहाँ पे पुलिस, CID, CBI और पता नहीं किन के, NIA, सबको इंटीमेशन दे दिया। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे पागल पड़ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उसने हमको फॉल्स अलार्म दिया जो कि हमारे लिए कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि हम बिना मतलब में बाकी रिसोर्सेस इंगेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रिसीजन की। F1 स्कोर, देखिए, जब डिटेल्स इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, डिटेल्स आपके मॉडल को जो ट्रेन करने में यूज़ की गई हुई हैं, या फिर
कुछ भी अन्य चीज़ जो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, मान के चलिए एक जो वेल बैलेंस, मतलब एक 50-50 का रेशियो नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, मैं एक जनरल टर्म में बात करता हूँ, अगर 50-50 नहीं है तो बैलेंस नहीं है, सीधी सी बात। या फिर एक के लिए 1 kg ऑरेंज और 1 kg का वेट, और ये दोनों चीज़ें नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि आप 1 किलो संतरा और आधे किलो का बाट रख के और 1 किलो आप तौल नहीं पाओगे एक बार में। 2 बार में आप तौल सकते हो नो डाउट, लेकिन एक बार में आप नहीं तौल पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, F1 स्कोर की। और अगर हमको क्या ज़रूरी है, सोचिए, रैंकिंग ज़रूरी है। ठीक है, रैंकिंग ज़रूरी है। रैंकिंग कैसे, कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये हायर रैंक करेगा, नेगेटिव है तो लोअर रैंक करेगा। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, AUC कर्व का। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ यही रहे। ठीक है, हमने आज सीखा है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 कहाँ ज़रूरी है, किस प्रकार के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कब, अगले लेक्चर में।